discuss the complete development of male gametophyte, that is microsporogenesis. Now we have to discuss the next type of gametophyte development that occur inside the ovule of an ovary related with the female gametophyte. ठीक है, लास्ट पीरियड में हमने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्टडी किया था, अब हमें स्टडी करना है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है, जैसे कि हमने लास्ट पीरियड में डिस्कस किया है, अ स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल फिल्ड विद द न्यूसेलस टिश्यू, जहां पर न्यूसेलस टिश्यू प्रेजेंट है, एंड दैट एंटायर ग्रुप ऑफ न्यूसेलस टिश्यू कंटेन a typical megaspore mother cell which gives rise to the female gametophyte, and this process, that is the development of a female gametophyte, development of the female gametophyte from the diploid megaspore mother cell from the diploid megaspore mother cell, and this complete process of development of female gametophyte, that is megasporogenesis, is an endosporic process. That means the complete megaspore develop inside the ovule. Okay, it is a type of endosporic process. We will discuss it. Now next one, megasporogenesis. How did this megasporogenesis take place? So initially we have a tissue called as nucellus tissue. सबसे पहले यहाँ पर एक tissue present है. The tissue containing a group of diploid cells located inside the ovule, protected by the layer of integuments, the inner integument and the outer integument, a group of diploid cells called as nucellus. And this nucellus contain a typical diploid cells called as megaspore mother cells. क्या कहेंगे हम इसे? मेगास्पोर मदर सेल्स, जो न्यूसेलस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर पार्ट इनसाइड द न्यूसेलस, जो भी स्ट्रक्चर हमने देखा है, यहाँ पर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, diploid cells, and all these diploid cells externally protected by the layer of integuments inside the ovule. ovule के अंदर इस टाइप से कंप्लीट न्यूसेलस का टिश्यू प्रेजेंट होगा. Okay, now one of the cells from this nucellus, that is megaspore mother cell, now acts as a cell for megasporogenesis. जितने भी diploid cell है, out of this diploid cell, a single cell present towards the micropyle end of ovule. A cell present towards the micropyle, that is micropylar end of ovule. It acts as megaspore mother cell. ठीक है, वैसे तो कलेक्टिव ग्रुप ऑफ सेल, इन्हें भी हम मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे, लेकिन ये जो न्यूसेलस प्रेजेंट रहेगा एंटायर ग्रुप न्यूसेलस टिश्यू का होगा. और इस न्यूसेलस में वन ऑफ द सेल फ्रॉम दिस टिपिकल माइक्रोपाइल एंड ऑफ ओव्यूल, जैसे हमने लास्ट पीरियड में डिस्कस किया है, दो अलग अलग एंड ओव्यूल के, माइक्रोपाइल एंड एंड एग्जैक्ट अपोजिट टू माइक्रोपाइल वी हैव the chalazial end,
So one of these cells acts as megaspore mother cell. ठीक है, इनमें से एक सेल एक्ट होगा एज megaspore mother cell. Generally all these cells are diploid. कैसे होते हैं ये सेल्स? डिप्लॉइड होते हैं. इन्हें हम ट्वाइस n से डिनोट करते हैं. And as this cell acts as megaspore mother cell, it undergo the first division in the development of female gametophyte, that is meiosis. यहाँ पर पहला डिवीजन होगा. पहला डिवीजन क्या है? meiotic division. By the process of meiosis, a diploid megaspore mother cell from the micropyle end divide to produce 4 haploid megaspores. क्या ध्यान हो गया यहाँ पर? 4 haploid megaspores तैयार हुए. कहाँ तैयार हो रहे हैं haploid megaspore? These haploid megaspores are now formed towards this particular end. ये जो एक स्पेसिफिक एंड यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, micropyle end, towards this micropyle end, a series of 4 consecutive cells in this pattern. एक 4 consecutive cells की सीरीज तैयार होगी, which are now formed by the division. कहाँ से तैयार होते हैं ये? डिवीजन से तैयार होते हैं. And all of these are now called as megaspores, which are haploid. क्या है ये? megaspores है, surrounded by the tissue of nucellus. कौन सराउंड करता है इसे? nucellus का टिश्यू यहाँ पे सराउंड कर रहा है. तो we get 4 haploid megaspore, एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में. ठीक है, तो इसे इस तरह से समझेंगे हम अभी. Entirely covered from the external side by the cells of nucellus, 4 haploid cells are arranged in a row. इस तरह से एक रो के फॉर्म में ये 4 haploid cells अरेंज किए जाएंगे और इन चारों सेल्स को अब कहा जाता है megaspore mother cell. That are the megaspore. Okay. Now after this, out of these 4 haploid megaspore, the first 3 megaspore get aborted or they get degenerate. पहले 3 मेगास्पोर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर डीजेनरेट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. एंड द लास्ट मेगास्पोर गेट एनलार्जेस इन इट्स साइज. इनिशियल 3 मेगास्पोर क्या होते हैं? दे गेट डीजेनरेट. सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये डेवलपमेंट होते हुए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर. वी हैव degeneration of megaspore mother cells, degeneration of 3 megaspores. 3 मेगास्पोर क्या हो गया यहाँ पर? डीजेनरेट हो जाएंगे आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 4 मेगास्पोर. ये जो ग्रुप तैयार होता है एक रो में, 4 मेगास्पोर यहाँ पर प्रेजेंट हो गए. इनमें से इनिशियल 3 मेगास्पोर get degenerate and the last megaspore present toward the micropyle end. जो मेगास्पोर माइक्रोपाइल एंड की तरफ प्रेजेंट होगा, this megaspore get enlarges in size. तो ये जो ग्रुप है, it is degeneration of 3 मेगास्पोर. 3 मेगास्पोर टोटली डीजेनरेट होते हैं और जो लास्ट मेगास्पोर है, it is now called as functional megaspore. क्या कहेंगे हम इसे? It is referred as functional
megaspore which is produced from megaspore mother cell. megaspore mother cell से यहाँ पर तैयार किया गया है, इसे कहा जाता है functional megaspore. So 4 haploid megaspore alternately gives us 1 functional megaspore. ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पर? एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर मिलेगा which is haploid, क्योंकि आउट ऑफ 4 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाएंगे या अबॉर्ट किए जाएंगे और सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पे प्रेजेंट होगा. ठीक है, एंड दीज मेगास्पोर नाउ गेट एनलार्जेस इन इट्स साइज. ये मेगास्पोर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसके साइज में एनलार्ज हो जाएगा. और ये एंटायर प्रोसेस कहाँ ऑकर हो रही है? This entire process is occurring inside the nucellus covered by 2 integuments, inner and outer integument. ठीक है, कहाँ ऑकर हो रही है? इनर एंड आउटर इंटीगुमेंट के अंदर जो न्यूसेलस का टिश्यू प्रेजेंट है, उस न्यूसेलस के टिश्यू में ये सारी की सारी प्रोसेस ऑकर हो रही है. अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पे है, this functional megaspore is called as first cell of female gametophyte. क्या कहा जाता है इसे? It is referred as first cell of female gametophyte. The entire female gametophyte develops from this first cell, that is the functional megaspore. आज समझ में क्या कहेंगे हम इसे? First cell of female gametophyte, and from this single cell, that is functional megaspore, it develops into a complete megaspore, that is the female gametophyte. इस functional megaspore का डेवलपमेंट कहाँ होगा? अबे functional female gametophyte में. And this development, that is formation of the functional female gametophyte, is called as megasporogenesis. तो ये प्रोसेस शुरू कहाँ से होती है? From this meiosis. जब ये meiosis होगा और यहाँ पर जो तैयार होता है एक functional female gametophyte, it is a particular structure जिसे हम जानते हैं by the name of embryo sac. क्या कहते हैं हम इसे? It is referred as embryo sac. और ये embryo sac क्या है? A particular structure having 7 cells, जहाँ 7 cells present होंगे and 8 nuclei. A specific structure, that is 7 celled and 8 nucleated structure embryo sac, it is referred as a functional female gametophyte. ठीक है, अब हम देखेंगे ये कैसे डेवलप होता है, किस तरह से इसका डेवलपमेंट होगा. फ्रॉम दिस वन फंक्शनल सेल, जो एक फंक्शनल सेल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, इस सिंगल फंक्शनल सेल से किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है ये देखेंगे. तो यहाँ तक तो हम आ गए फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर तक. नाउ दिस फंक्शनल मेगास्पोर, क्या कहा है हमने इसे? फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कहा है. दिस फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज अ फंक्शनल मेगास्पोर. Now undergo a series of mitotic divisions. क्या हो गया यहाँ पर? एक सीरीज फंक्शनल मेगास्पोर में सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन कंटिन्यूअसली 3 सक्सेसिव माइटोसिस और 3 कंसेक्यूटिव
माइटोटिक डिवीजन। क्या हो गया यहाँ पर? 3 consecutive और sequential mitotic division one after other। एक ही से कंटिन्यूअसली माइटोटिकली डिवाइड होता जाएगा, वन आफ्टर अनदर डिवाइड। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन फॉलोड बाय सेकंड माइटोटिक डिवीजन एंड अगेन फॉलोड बाय थर्ड माइटोटिक डिवीजन। ऐसे 3 कंसेक्यूटिव सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। क्या होता है ये? प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन followed by second mitotic division followed by third mitotic division। ऐसे 3 डिवीजन हो गए और ये तीनों के तीनों डिवीजन जो है एक पर्टिकुलर टाइप के हो गए। ऑल दीज 3 डिवीजंस आर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, रिमेंबर। कैसे होते हैं ये तीनों डिवीजंस? ऑल दीज 3 डिवीजंस आर अ पर्टिकुलर free nuclear division। A free nuclear division means where only nucleus get divided, not the cytoplasm। जहां पर डिवीजन तो हो रहा है, माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या? सिर्फ न्यूक्लियस। यहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। मींस अ सेल रिमेन सिंगल, सेल एक ही रहेगा। डिवीजन किसका हो रहा है यहाँ पे? सिर्फ न्यूक्लियस। इस सेल में ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, a haploid nuclei of the cell, this haploid nuclei consecutively get divided by means of 3 mitotic division। यानी यहाँ पे सिर्फ कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हो रही है, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। इसी कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, दैट इज ओनली द प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। सेल डिवीजन में स्टडी किया है हमने, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है। यहाँ पे क्या ऑकर होता है? सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ऑकर होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में। साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। कितने कंसेक्यूटिव डिवीजन है? 3 कंसेक्यूटिव डिवीजन। ठीक है, अब देखेंगे 3 कंसेक्यूटिव डिवीजन किस तरह से ऑकर हो गया यहाँ पे। बाय मींस ऑफ द फर्स्ट डिवीजन, जब एक डिवीजन होगा पहले डिवीजन में, द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन देखिए किस तरीके से होगा। बाय मींस ऑफ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, अ सिंगल न्यूक्लियस, एक सिंगल न्यूक्लियस जो है, इट गेट डिवाइडेड टू प्रोड्यूस 2 न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियस से क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई तैयार हो रहे हैं। कहां पर? फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। Then we have second mitotic division, the second division। अब second division में क्या होगा? These 2 nuclei, फिर से these 2 nuclei again get divided to produce 4 nuclei। हर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, 2 न्यूक्लियस के डिवीजन से फिर से यहाँ पर 4 न्यूक्लियस तैयार होंगे। अगेन इट इज फॉलोड बाय थर्ड डिवीजन, माइटोटिक। तीसरा डिवीजन होगा माइटोसिस से। देन फ्रॉम 4 न्यूक्लियाई, जो 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, दिस 4 न्यूक्लियाई अगेन गेट डिवाइडेड टू प्रोड्यूस 8 न्यूक्लियाई विदिन अ सिंगल सेल। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इस फंक्शनल मेगास्पोर में कंटिन्यूअस एंड कंसेक्यूटिव कैरियोकाइनेसिस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इंटरनली जो सेल है कंप्लीटली, दिस सेल रिमेन फिल्ड विद साइटोप्लाज्म। फंक्शनल मेगास्पोर में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया यहाँ पर? इसके यहाँ पर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, एंड अलोंग विद साइटोप्लाज्म इट कंटेन हैप्लॉइड न्यूक्लियर, दैट इज हैप्लॉइड nucleus, and this haploid nucleus here by means of 3 successive division, एक के बाद एक, without the division of cytoplasm, that is without cytokinesis। क्या इन्वॉल्व है यहाँ पे? सिर्फ कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या?
we get the enlarged type of a cell. एक enlarged type का सेल मिलेगा यहाँ पे एकदम फाइनल. In the last we get this type of a cell. Functional megaspore get enlarges in size. ये functional megaspore इसके साइज में enlarge होगा. अब यहाँ पर जो है continuous 8 nuclei तैयार होते हैं. These 8 nuclei now migrate to two opposite poles in a group of 4 nuclei. इस तरह से जो 8 न्यूक्लियाई तैयार होते हैं, ये 8 न्यूक्लियाई दो अपोजिट पोल्स पर माइग्रेट होंगे. 4 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द चलाजल एंड. कौन से एंड पे प्रेजेंट है? एट द चलाजा एंड. एंड रिमेनिंग 4 न्यूक्लियाई कहां प्रेजेंट है? 4 न्यूक्लियाई एट माइक्रोपाइल एंड. कहां प्रेजेंट हो गए? माइक्रोपाइल एंड में. अब ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, नाउ इट इज सिंगल सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कैसा है ये स्ट्रक्चर? इट इज अ सिंगल सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. सेल तो एक है, लेकिन इस सिंगल सेल में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं? 8 न्यूक्लियस है. 4 न्यूक्लियस चलाजल एंड की तरफ प्रेजेंट है, 4 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड में प्रेजेंट है. इतने सारे न्यूक्लियस कहां से आए? बाय सक्सेसिव डिवीजन ऑफ अ सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. ऑल दीज न्यूक्लियाई आर अगेन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. ये कैसे होंगे? जहां पर भी प्रेजेंट है, ऑल दीज न्यूक्लियाई आर द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. सभी के सभी, चाहे चलाजल एंड में प्रेजेंट हो, चाहे माइक्रोपाइल एंड की तरफ प्रेजेंट हो, ऑल द न्यूक्लियाई आर पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. ठीक है. अब इसके बाद क्या होगा? इन दिस पर्टिकुलर स्टेज वी हैव अ पार्शियली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट. ये एक पार्शियली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट है, विच इज अ सिंगल सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सेल दिखाई दे रहा है और टोटल न्यूक्लियाई कितने हैं? यहाँ पर 8 न्यूक्लियाई हमें दिखाई दे रहे हैं. अब इसके आगे का स्टेप देखिए क्या होता है. आफ्टर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और द प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, हमें यहाँ पर जो भी मिला है, इट इज a partially developed female gametophyte. एक partially developed female gametophyte मिला है. Now after this process we get completely developed female gametophyte. ठीक है. ये जो सेल है, कौन सा सेल है ये? A cell of megaspore, that is functional megaspore. which is present towards the माइक्रोपाइल एंड. जो मेगास्पोर माइक्रोपाइल एंड की तरफ प्रेजेंट है, यहां पर हुआ है. एंड आफ्टर दिस प्रोसेस, अब ये प्रोसेस होने के बाद एट द लास्ट वी गेट अ डेवलप्ड, कंप्लीटली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट. सबसे लास्ट में हमें मिलेगा एक कंप्लीटली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है. एंड इन केस ऑफ कंप्लीटली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट, ये जो भी हमारा कंप्लीटली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट रहेगा, सबसे पहले हमने कहा था इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. कैसा है ये? पर्टिकुलर 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है, जहां 7 अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है एंड 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट. अब यहाँ पे होगा क्या? ये जो 4 न्यूक्लियाई चलाजल एंड पे प्रेजेंट है, 4 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल एंड में प्रेजेंट है. आउट ऑफ दिस 4 न्यूक्लियाई, 1 न्यूक्लियाई फ्रॉम ईच एंड कम टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है.
दोनों एंड से एक एक न्यूक्लियाई जो है इस मेगास्पोर के सेंटर की तरफ आएंगे, यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट हुए। अब बचे कितने यहाँ पर 3 न्यूक्लियस बचेंगे चलाजर एंड पर, 3 न्यूक्लियस बचेंगे माइक्रोपाइल एंड पर। ऑल दीज 3 न्यूक्लियाई नाउ गेट कवर्ड बाय द लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब यहां पर एक्सटर्नली इन तीनों न्यूक्लियाई के बाहर से एक सेल मेम्ब्रेन डेवलप हो जाता है, so that they appears like a cell, like this one. At both the end, दोनों एंड की तरफ जो भी यहाँ पर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इन न्यूक्लियाई को एक्सटर्नली सराउंड करेगा अभी डेवलप्ड सेल मेम्ब्रेन। अब क्या हो गया, न्यूक्लियस तो पहले से ही प्रेजेंट है, 4 न्यूक्लियस चलाजर एंड में है, इन चारों में से एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आएगा इस सेल के फंक्शनल मेगास्पोर के। उसी तरह से one nucleus from micropyle end also moves towards the center, that is this particular micropyle end, यहां से भी एक न्यूक्लियस आएगा, चलाजर एंड यहां से भी एक न्यूक्लियस आएगा। now at both the end there is only 3 nuclei, दोनों एंड पर सिर्फ 3 न्यूक्लियाई बचेंगे, ठीक है। अब इन तीनों न्यूक्लियाई को बाहर के साइड से कवर किया जाएगा बाय अ सेल मेम्ब्रेन। अब जाकर कहा इन न्यूक्लियस को एक्सटर्नली सेल मेम्ब्रेन से कवर किया जाता है, अपीयरेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एंड एज द 3 nuclei get covered by means of cell membrane, they are appeared as a group of 3 cells at the chalazer end and at this particular micropyle end, having a particular structure of 2 nucleus at the center of functional megaspore। ये इस तरह का एक पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होगा। इंटरनली दिस एंटायर functional megaspore remain filled with the cytoplasm, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीटली क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। उसी तरह से कुछ साइटोप्लाज्म ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स तैयार हो गए, 3-3 ग्रुप का एक 3-3 सेल्स का एक जो ग्रुप तैयार होता है, यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जब सेल वॉल का, तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिलेगा। नाउ द ग्रुप ऑफ 3 सेल which are present towards the chalazial end, इन्हें कहा जाता है एंटीपोडल्स। एंटीपोडल सेल्स, और they are also called as the polar bodies। एंटीपोडल सेल्स और the polar bodies। At the same time, a group of 3 cell present towards the micropyle end, यहाँ पे जो end present है it is chalaza end। क्या हो गया, ये एक चलाजा end हो गया, और ये जो end होता है it is micropyle end। This one is particular टिपिकल माइक्रोपाइल एंड। अब माइक्रोपाइल एंड पे ये जो 3 सेल का ग्रुप है इसे कहा जाता है सिनर्जीज। क्या कहेंगे इसे हम, सिनर्जीज कहेंगे। सो 3 सिनर्जीज that are the 3 cells are present toward the micropyle end। एंटीपोलर सेल्स कितने हो गए, या पोलर बॉडीज, यहाँ पे भी 3, टोटल नंबर ऑफ सेल 3 + 3 6। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होगा इट इज नाउ रेफर्ड एज एम्ब्रियो सैक। ये जो सेंटर में होगा यहाँ पर, जहाँ पे 2 न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं, सेपरेट है, ठीक है, अभी तक एक दूसरे के साथ ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हुए हैं, सेपरेटली प्रेजेंट है, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस।
क्या कहेंगे हम इसे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। इस तरह से ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। इट इज रेफर्ड एज कंप्लीटली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट। इस तरह से एक फीमेल गैमेटोफाइट पूरी तरह से डेवलप होता है। अब टोटल नंबर ऑफ सेल अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो 3 सेल प्रेजेंट है एंटीपोडल सेल्स के फॉर्म में चलाजर एंड पर, 3 सेल्स प्रेजेंट है सिनर्जिड के फॉर्म में माइक्रोपाइल एंड पर। टोटल नंबर ऑफ सेल बिकम्स 3 + 3 6, और ये जो सबसे बड़ा है एक सिंगल सेल दिखाई दे रहा है, द सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। इसे हम कहते हैं अ कंप्लीटली डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक। देखो इस एम्ब्रियो सैक में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 3 सेल्स एंटीपोडल सेल्स के फॉर्म में है चलादा एंड पर, 3 सेल्स सिनर्जिड के फॉर्म में प्रेजेंट है माइक्रोपाइल एंड पर, एक सबसे बड़ा सेल जिस सेल के अंदर ये बाकी के सब स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म जो भी है प्रेजेंट रहेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, दैट इज अ सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक और अ फंक्शनल मेगास्पोर सेल, ठीक है। ये सबसे बाहर का जो बड़ा सेल है कौन सा सेल है, दिस लास्ट वन, द लार्जेस्ट सेल, इट इज अ फंक्शनल मेगास्पोर सेल। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए बच्चों यहाँ पर, 7 सेल, एंड ऑल ऑफ दिस सेल्स आर हैप्लॉइड। ये सभी सेल्स क्या है, हैप्लॉइड है, कंटेनिंग हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई काउंट करो, 3 न्यूक्लियाई एंटीपोडल सेल्स में, 3 न्यूक्लियाई सिनर्जिड्स में, 3 + 3 6, और 2 न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेंगे। इट मींस दिस एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, फंक्शनल मेगास्पोर जो है, इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर developed by means of first meiotic division and followed by 3 consecutive mitotic division, ठीक है। डिवीजन दोनों इन्वॉल्व है, पहला डिवीजन मियोटिक डिवीजन जो एक स्पेसिफिक सेल होगा हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल, अ डिप्लॉइड सेल, ये एक डिप्लॉइड सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल हैविंग द न्यूक्लियस। This diploid microspore mother cell divide by means of meiosis, क्या होगा यहाँ पर, process of meiosis to produce 4 haploid megaspore। ये सभी के सभी मेगास्पोर कैसे होते हैं यहाँ पर, haploid megaspore। Now out of these haploid megaspore, initial 3 megaspore get degenerate or they get aborted, and last one remain in functional state, इसे ही कहा जाता है functional megaspore, which represent the first cell of female gametophyte। अब ये जो functional megaspore यहाँ पर है, this functional megaspore undergo 3 successive mitotic division, और ये जो सभी के सभी mitotic division है, these are the free nuclear mitotic division। कैसे होंगे ये सभी, free nuclear mitotic division result in the formation of total 8 nuclei, and out of these 8 nuclei 4 nuclei are get shifted towards the Chalazar end, Chalazar end की तरफ शिफ्ट होंगे, remaining 4 nuclei are get shifted towards the micropyle end। Now out of this group of 4 nuclei, 1 nuclei from each end migrate towards the center of functional megaspore and forms secondary nucleus। जैसे ये यहाँ पर माइग्रेट हो गए, यहाँ से एक न्यूक्लियस यहाँ तैयार होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस, रिमेनिंग न्यूक्लियाई आर 3 at both the end। All of these 3 nuclei are now get covered by the formation of cell membrane externally, result into the formation of a group of 3 cells। बाहर से यहाँ पर इन तीनों न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन से कवर किया जाएगा और 3 सेल का एक ग्रुप यहाँ पर तैयार होता है जो चलाजर एंड की तरफ तैयार होगा, एंटीपोडल सेल, या इस ग्रुप को एंटीपोडल कहेंगे या फिर पोलर बॉडीज कहेंगे। जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ डेवलप होगा इसे हम कहेंगे सिनर्जिड्स। तो इस तरीके से
by the process of megasporogenesis, there is a formation of embryo sac, a 7-celled and 8-nucleated structure which represent a completely developed female gametophyte. ठीक है, अब इसके आने वाला प्रोसेस हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये जो एंटायर पार्ट यहाँ पे दिया गया है किस तरह से डेवलपमेंट होता है, काफी आसान है, बस 2 से 3 मल्टीपल स्टेप्स है, जहाँ इन स्टेप्स में एंटायर प्रोसेस विद इन द न्यूक्लियस कैरी आउट की जाएगी। इस एंटायर पार्ट को आप नोट्स में से एक बार अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ऑल द बेस्ट।